Hello dear students, good morning to all of you. Today we are going to understand the expenditure method of calculating national income. So let's start. Expenditure method measures national income in terms of expenditure on all final goods and services produced in the economy during an accounting year. यानी कि एक accounting year में हमारे देश की इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन पर टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसे मेज़र करके एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकाली जाती है. नाउ to calculate national income using expenditure method we need to follow some steps. Let's understand the steps. The first step is to identify the sectors which incurred expenditure on final goods and services. Now there are four sectors: household sector, producer sector, government sector, and rest of the world, that is the sector which is out of the country. Now if we talk about the classification of expenditure, we are talking about incurred expenditure. So we are going to classify these expenditure. So classification of expenditure, there are four types of expenditure that we need to know. The first one is private final consumption expenditure. The short form is PFCE. This is the expenditure incurred by households, individuals and non-profit private institutions serving household, and the expenditure is made on the final goods and services. Now if we talk about government final consumption expenditure, the short form is GFCE, government final consumption expenditure. This is the expenditure which is incurred by government to satisfy the collective wants of people. This expenditure is made on health, education, law and order, etc. Now if we talk about third one, that is gross domestic capital formation. The short form is GDCF. Now if we talk about capital formation, the expenditure on it is known as investment. Now there are two types of investment: fixed investment and inventory investment, which is known as change in stock. If we talk about fixed investment, then there are three types of fixed investment. The first one is business fixed investment, household fixed investment and public fixed investment. Business fixed investment is the expenditure incurred by producers on machinery, factory buildings, etc. Household fixed investment is the expenditure incurred by household on residential flats and buildings or households. Public fixed investment is the expenditure incurred by the government on hospitals, schools, roads, dams, etc. Now the final one is net exports. Net exports is the difference between exports and imports. I hope that you well known about exports and imports, and that is the short form of net exports is NE. So that was the first step in which, after identifying the sectors, we made the classification of expenditure. Now the second step. In second step, we are to calculate GDP-MP, that is gross domestic product at market price. To calculate GDP-MP, we are to sum up the total expenditures: private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. I hope this portion is clear to you. So let's move to the next step. Dear students, as I have already told you, step 2 of calculating gross domestic product at market price. Now there's something different to know. First, if you want to calculate GDP-MP, then you are to sum up all types of expenditure here: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net export. But the value of gross domestic capital formation can be calculated differently in different conditions. Like, you can find gross domestic capital formation if फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन. अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, तो मैंने कहा था कि कैपिटल फॉर्मेशन पर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है तो इन्वेंट्री भी ज़रूर होगा. यानी कि अगर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आया है तो आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा. सेम हियर, इफ़ यू फाइंड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देन डू ऐड चेंज इन स्टॉक टू कैलकुलेट GDCF. नाउ नेक्स्ट वन, इफ़ यू फाइंड net domestic capital formation, we need gross domestic capital formation, but
If in question net domestic capital formation is given, then we have to add depreciation to convert net value into gross value. Next condition, if net domestic fixed capital formation is given. Now look at the point, fixed capital formation is given, and I have already told you, if you find fixed capital formation, then do add change in stock as I am doing here. There's a value of fixed capital formation, then I have to add change in stock in it. And as net value is also given, but we require gross value, then we have to add depreciation here. So to calculate gross domestic capital formation, these different formulas can be used. So use the formula according to your requirement and according to the requirement of the question given to you. Now if I talk about step 3, in step 3 we are to calculate domestic income using expenditure method. So to calculate domestic income means net domestic product at factor cost, NDPFC is to be calculated from GDP-MP. So to calculate NDPFC from GDP-MP, we are to deduct the value of depreciation and net indirect taxes from GDP-MP, and finally we will get the value of NDPFC. Now you already know how to calculate GDP-MP, you know about depreciation, but the value of net indirect taxes, it is the difference between indirect taxes and subsidies. I have given the formula here. You can take a screenshot of this so that it can be useful to you. Now the last one, if I talk about how to find out the national income, to find out the value of NNPFC, means net national product at factor cost. To find out the value of NNPFC, we are to add the value of net factor income from abroad to net domestic product at factor cost. Means to calculate national income, you are to add net factor income from abroad to the domestic income. And if you do not know about the formula of net factor income from abroad, so it is the difference between factor income from abroad and factor income to abroad. I hope this concept is useful and clear to you. Now we are going to understand the same concept using different numerical examples. Now dear students, here two examples are given. In first example we are asked to find out the value of GDP-MP. पहले एग्जाम्पल में हमें GDP-MP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए कहा है. अब जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको दो बातें ध्यान रखनी है. पहली बात, हमें क्या फाइंड करना है, और दूसरी बात, कंपोनेंट्स किस मेथड के दिए गए हैं, क्योंकि नेशनल इनकम को करने के लिए तीन अलग अलग मेथड होते हैं और तीनों मेथड में हमें अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी होती है. तो याद रहे, सबसे पहला काम यही करना है कि अगर मेथड नहीं दिया गया है देन फर्स्ट यू आर टू लुक एट द कंपोनेंट्स, दैट कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किस मेथड के हैं. राइट. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें GDP-MP निकालना है और जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं हमारे पहले एग्जांपल में सब एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा. हमें GDP-MP जब एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो सारे एक्सपेंडिचर को हमें टोटल करना होता है, जिसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स दिया जाता है. तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया गया है 2000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया गया है 1000 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है 600 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स दिया गया है 40. तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो जो हमारे पास GDP-MP आता है वो आता है रुपी 3640 करोड़. वैल्यू जो है करोड़ में इसलिए लिखी है क्योंकि वैल्यू को जो है इन करोड़ दिया गया है. तो ये टोटल हो जाता है 3640 करोड़. आपको भी वैल्यू जो है इसी तरह से लिख कर आनी है. नाउ हम बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल में GDP-MP निकालने के लिए कहा गया है. तो पहला बात क्या फाइंड करना है, GDP-MP कंपोनेंट्स किस मेथड के हैं. तो अगर हम देखते हैं तो फिर से एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं. जहां हमारा एक्सपेंडिचर मेथड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही लगाना होगा. वी आर टू राइट GDP-MP एंड आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. हियर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, दैट इज 2000
गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज 1000, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ आप अगर यहाँ ध्यान दें थर्ड पॉइंट पर, तो लिखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और मैंने कहा था कि अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करना होगा चेंज इन स्टॉक, और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक। देखिए चेंज इन स्टॉक नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 200 माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 100, तो 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 600। हमारा क्या जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमें दिया गया है 40। तो आप देख सकते हैं जीडीपी एमपी की वैल्यू आती है ₹3640 करोड़। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स में आते हैं और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है तो आपको चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड करना है। नाउ हम समझते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो। नाउ देखिए इन थर्ड एग्जाम्पल हमें नेशनल इनकम निकालनी है और इस बार कहा गया है कि आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाकर नेशनल इनकम निकालेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, तो हमें तो ये पता है कि जब भी एक्सपेंडिचर मेथड की बात आती है तो सबसे पहले हमें जीडीपी-एमपी निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला वही रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड से, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो वैल्यूज आती है 210 प्लस ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की आती है 50 प्लस, अब देखिए यहाँ लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने कहा है जैसे ही फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन स्टॉक कितना दिया गया है। तो पूरे क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं है, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है 40, चेंज इन स्टॉक है 0, और क्योंकि नेट वैल्यू दी गई है बट हमें तो ग्रोस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ना होगा। और नीचे दिया गया है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कई बार बच्चे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को कैपिटल फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये डेप्रिसिएशन है और नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ते ही ग्रोस बन जाता है। तो डेप्रिसिएशन दिया गया है 25, तो प्लस हो जाएगा 25, और लास्ट में हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दैट इज -5। अब हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं जीडीपी-एमपी की, 260, 300, 325, 325 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 320। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा जीडीपी-एमपी निकलता है, जीडीपी-एमपी इज इक्वल्स टू ₹320 करोड़। बट ये तो जीडीपी-एमपी निकला है, हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम NNPFC। तो हमें NNPFC निकालना है, हम NNPFC निकालेंगे, लेकिन NNPFC निकालने के लिए हमारे पास है जीडीपी-एमपी। अब देखिए अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो जीडीपी-एमपी से डेप और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, और अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं NFIA। यानी कि यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया जाएगा। बट कैसे वो भी समझते हैं। देखिए नेट और ग्रोस का डिफरेंस होता है डेप, तो नेट निकालने के लिए डेप को माइनस करते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल निकालने के लिए प्लस करना है, डोमेस्टिक निकालने के लिए माइनस। अब क्योंकि हमें नेशनल निकालना है तो हम प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वहीं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, नेट और ग्रोस का डिफरेंस होता है डेप, नेट के लिए माइनस करेंगे, ग्रोस के लिए प्लस करेंगे, क्योंकि हमें नेट चाहिए तो हमने माइनस किया। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल के लिए प्लस करेंगे, डोमेस्टिक के लिए माइनस करेंगे, क्योंकि हमें नेशनल चाहिए इसलिए हमने इसको क्या किया, प्लस किया।
फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस करते हैं और मार्केट प्राइस के लिए प्लस करते हैं, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए इसलिए हमने क्या किया, माइनस किया। नाउ हम यहाँ बात करते हैं जीडीपीएमपी हमारा आता है 320 माइनस डेप हमारे पास आ जाता है 25 प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास जाता है 3 और माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें नहीं दिया गया है, तो एनआईटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट मीन टू से 30 माइनस 5 माइनस 30 माइनस 5। सो अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ देखते हैं 320 ये माइनस है और ये माइनस है, अलग ले जाइए तो बनता है 323 माइनस 25 और 30 में से 5 जाएंगे 25, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 50, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 273। तो हमारी जो नेशनल इनकम आती है NNPFC इज इक्वल टू ₹273 करोड़। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सपेंडिचर मेथड और उसके न्यूमेरिकल करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।